Let's welcome Amin Virani sir, who is an eminent coach in the field of personal transformation for more than 20 years now. And Amin sir holds a master degree from University of London in Education, Planning and Management. And he is working as a director of Merit Consultancy, a consulting firm that provides training and management consultancy to MNCs for more than 15 years now. And apart from being so successful professionally, he has also served our institution in many ways. And he is also being chairman for ITREB in past. So we are grateful that he's volunteered to come amongst us today for a review session for the book 7 Spiritual Laws of Success. So I'm sure we all must have heard this famous dialogue from Shah Rukh Khan's film. किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुमको उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. So today he will share the secret of doing this with us. So before I request Amin sir to start the session, I would like to thank our organizing team members, Amin Jasani Mukhi sir, Noor Ali Bhimani sir, Parvez Joshi sir, and Sohail Bhojani sir, who's made this session possible for all of us. I won't take much time. I'll request Amin sir to start the session now. Amin sir, over to you. Thank you, Jasmine. Thank you for such wonderful words. And thank you all of you for being here today on a Saturday evening to be part of this particular session, which is the first of its kind digitally. And I think this is one more blessing in disguise कि अगर हम आज के बाद जब भी चाहेंगे, जितना भी चाहेंगे, हम एक दूसरे के साथ मिल सकेंगे, बातचीत कर सकेंगे और इंशाल्लाह वो हासिल करेंगे जो जनरली मुमकिन नहीं होता अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो. So let me begin by saying it's my honor, my privilege to be with all of you. I love to be with all of you. I love doing this work, and inshallah ये बार जो मुझे मौका दिया गया है, which is very different. So we are testing it out with a small group, and you are a privileged group in that sense. हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर ये डिजिटली हमारा जो कॉन्वर्सेशन है अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो शायद हम अभी बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे और सिर्फ मैं नहीं, मुगीत साहब and Parvez and the others who are in the committee including Noor Ali, they will get you some more speakers, some more powerful speakers than me. And inshallah, if you will commit yourself to not just listening, but also acting upon things that we learn, inshallah, our lives will get transformed. आप लोग जो यहाँ पर हो, I am letting you know that you are already very transformed. मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी जिंदगी में, whether we like it or not, we are the choice makers. We make the choices. और हमको लगता है कि कभी कभार वो हमारी चॉइस नहीं होती है, कभी कभार हमारा सिर्फ रिएक्शन होता है जो मुमकिन है, लेकिन वो रिएक्शन में भी चॉइस की फ्रीडम हमारे पास होती है और हम चूज करते हैं रिएक्ट करने को रादर देन मेकिंग अ चॉइस. आज आप लोगों ने ये चूज किया कि बाकी सारे दुनिया के काम छोड़कर आज यहां पर हम बैठे हैं एक दूसरे के साथ ये समझने के लिए कि भाई ये लॉज क्या चीज है, ये कानून क्या चीज है जिसको हम कहते हैं लॉज ऑफ नेचर, यूनिवर्सल लॉज, और उसका हमारी जिंदगी के साथ क्या ताल्लुक है. व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन द लॉज ऑफ नेचर एंड आवर लाइफ. और दीपक चोपड़ा की जो किताब है 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस, वो कहता है उसका और एक उन्वान हो सकता है, एक और हेडिंग हो सकता है, विच इज 7 लॉज ऑफ स्पिरिचुअल हैप्पीनेस और 7 लॉज ऑफ लाइफ. तो उसका ये कहना है कि वेदर इट इज सक्सेस, वेदर इट इज हैप्पीनेस या हमारी जिंदगी, अगर हम ये 7 कानूनों को, अगर हम ये 7 प्रिंसिपल्स को हमारी जिंदगी में ले लेते हैं तो इंशाल्लाह हम मानेंगे नहीं, बिलीव नहीं करेंगे उतनी तरक्की, उतनी आबादी और उतनी खुशी और उतनी फुलफिलमेंट हमारी जिंदगी में हम ला सकते हैं. तो मैं कोशिश करूंगा शुरुआत में कि क्योंकि सभी के पास वो किताब नहीं है और सभी ने शायद उसकी समरी भी नहीं मिली या नहीं पढ़े, तो मैं वेरी ब्रीफली समराइज करूंगा और फिर क्योंकि मेरे पास बहुत कम वक्त है इस बार, लार्जर सेशन विल हैपन इन फ्यूचर, मैं कोशिश करूंगा कि जो खास खास बातें हैं ये किताब के अंदर जो दीपक चोपड़ा समझाने की कोशिश करता है उस पर मैं मेरा
अपना इंटरप्रिटेशन, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग आपको देने की कोशिश करूंगा. टेक इट और लीव इट. जरूरी नहीं कि मैं जो कहता हूं इज द ट्रूथ, जरूरी नहीं कि मेरी जो समझ है वो आखिरी समझ है. मैं तो चाहूंगा कि हम लोग फ्यूचर में डिस्कशन करेंगे ताकि हम मुझे आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू मिले, आपकी अपनी निजी प्रैक्टिकल जिंदगी में आपने क्या सीखे हैं और क्या समझा है. अगर आप वो शेयर करना चाहे तो वो करना. और हम ये कॉन्वर्सेशन को, वी विल नॉट हैव दिस कॉन्वर्सेशन टू कम टू अ कंक्लूजन. We will not ever come in a conversation to come to an answer. The whole idea is, can we continue to dwell in the question, not necessarily get the answer, but dwell in the question. क्योंकि जिस दिन हमको आंसर मिल जाता है ना, उस दिन हमारी तरक्की रुक जाती है, उस दिन हमारा ग्रोथ रुक जाता है. और अगर आपको चाहिए कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हर पल बनता जाए, हर पल आप आगे बढ़ते जाओ, तो remember one statement which I keep giving in my program, that yesterday's transformation is today's ego trip. Yesterday's transformation is today's ego trip. अगर कोई ये मानता है कि ओ मैं तो ट्रांसफॉर्म हो चुका हूं, मुझे तो जितना सीखना था मैं सीख लिया, जितना समझना था समझ लिया, जिंदगी जीना आ गया मुझे, और मुझे पता चल गया what are the secrets of life, तो मैं कहूंगा कि he has to be cautious and remember कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो कल का था. काले भोजन जे जमिया तेना आज सु वखान. In fact, if you keep working with the premise that oh I am good, I don't need anybody to make me understand anything, or I don't need to understand anything more, it becomes our ego trip. ये बात हम लोग आगे चलकर और समझने की कोशिश करेंगे. तो दीपक चोपड़ा के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि he is basically a doctor and MD, जो बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, ये तीनों का होलिस्टिक अप्रोच लेकर समझाने की और लोगों को हील करने की कोशिश करता है कि आपकी जो बीमारी होती है, आपकी जो तकलीफ होती है, इट इज नॉट नेसेसरली ओनली फिजिकल. इट हैज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ योर माइंड एंड ऑल्सो योर स्पिरिट. He is a person who has written lots of books, many bestsellers, including, of course, the 3 laws of success, spiritual laws of success, 7 laws of spiritual success. He has written books like Creating Affluence, which also you must know, or another one which says 20 spiritual lessons for creating the life you want. His most famous book is Ageless Body and Timeless Mind. तो शायद आपको ये किताबों के बारे में मालूम है. And as Nurali said earlier, कि अगर आपको 7 स्पिरिचुअल लॉज अगर सुननी है तो YouTube के ऊपर फ्री अवेलेबल है. और प्लीज मेरे ये सेशन के बाद वक्त जैसा मिले, आप वो ऑडियो ऑन करके पूरी किताब सुन लेना. इट विल टेक अबाउट एन आवर और लिटिल मोर, लेकिन आपको पूरे की पूरी किताब की समझ हासिल होना शुरू हो जाएगी. सो टू स्टार्ट माय सेशन, एंड आई एम गोइंग टू बी अ लिटिल क्विक, अ लिटिल फास्ट, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कवर कर सकूं. और आपके अगर कोई सवाल इमीडिएटली है तो आप चैट बॉक्स में लिखना, नहीं तो मैं आखिर में आपको मौका दूंगा और आप मुझे सवाल पूछ सकते हो और मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा. So let me share my PowerPoint with you all now. So we are going to do a little bit of a book review on 7 spiritual laws of success by Deepak Chopra. Or if you have gone through the summary also, you will know that there are 7 spiritual laws that he talks about. Number 1 is the law of pure potentiality. Number 2 is the law of giving. 3, the law of karma or cause and effect. 4, the law of least effort. 5th, the law of intention and desire. 6th, the law of detachment. 7th, the law of dharma. अगर ये 7 प्रिंसिपल्स और 7 लॉज के बारे में अगर थोड़ा आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सातों के सातों इंटरकनेक्टेड है. और आप अगर एक को फॉलो करेंगे और दूसरे को नहीं करेंगे तो चांसेस आर नन विल वर्क. If you want to get results out of following these principles, you have to keep in mind all 7 and make sure that you don't violate any of those laws if you want your life to work as he's saying it will work. If I can summarize कि ये किताब क्या चीज है, तो you will probably, I can say that this book is about
the content and the context. ये आपके सामने जो मैंने पिक्चर रखा है, it's about a finger. And if I say, what is it? What will you say? You will say it's a finger, or you will say it's number 1, or you will say it is north, or it will say cricket ke andar it's out. So now the question is, what is life? And the simple answer to that is that there is no meaning in life without the context. अगर हम जिंदगी को समझना चाहते हैं या जिंदगी के अंदर कोई भी मसाइल, कोई भी प्रॉब्लम से डील करना चाहते हैं, तो हमको ये समझना जरूरी है कि हर ट्रांजैक्शन के अंदर एक कॉन्टेक्स्ट होता है। और जब तक हम ये कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझते हैं, हमको पता नहीं चलता कि ये फिंगर का माना 1 होता है या आउट होता है या नंबर 1 होता है। एंड टू दैट एक्सटेंट कॉन्टेक्स्ट इज द किंग। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर आप थोड़ा और ज्यादा सोचना, क्योंकि मैं जब वो प्रोग्राम्स मेरे कंडक्ट करता हूं, मैं एक ही चीज कहता हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन ओनली एंड ओनली व्हेन यू कम फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, नॉट फ्रॉम द कंटेंट। अगर आज आप कभी कभार जिंदगी के अंदर तकलीफ में आ जाते हो, अगर आपको कोई कुछ कह देता है और आप दुखी हो जाते हो, अगर आपको बुरा लग जाता है, यू गेट हर्ट, या मानो कि आपको खुशी मिलती है किसी की बात पे से, कोई आपकी तारीफ करता है तो यू स्टार्ट गेटिंग वेरी प्लीज्ड। मैं आपको ये कह दूं कि यू आर नॉट गेटिंग ऑफेंडेड बिकॉज somebody is hurting you. You are getting offended because you are wanting to be offended. अगर मैं आपको ये कहूं तो शायद आप ये बात कबूल नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप ये कॉन्टेक्स्ट वाली बात बराबर से समझेंगे तो मैं आपको इतना कहूंगा कि मैं जब भी घर पर आता हूं तो मुझे पूछने में आता है कि ये वक्त है आने का। अगर मेरा दिमाग खराब है, उस वक्त मैं गुस्से में हूं, तो मैं कहूंगा कि हाँ, ये वक्त है आने का। और अगर मुझे ज्यादा गुस्सा होता है तो मैं बोलता हूं, क्या मैं मजा करने गया था, मैं इंजॉय करने गया था, मैं अपने काम के लिए गया था। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। नाउ एट दैट टाइम द डायलॉग gets into an argument and probably the night goes waste. Chances are अगर मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए थोड़ा ज्यादा अवेयर हो जाऊं तो मुझे पता चलेगा कि मुझे ये सवाल इसलिए पूछने में आता है कि मेरी वाइफ, मेरी माँ, मेरे घर वाले मेरी फिक्र करते हैं और उनको डर है कि शायद ये गया है, कुछ एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कुछ तकलीफ तो नहीं हुई। They are worried and therefore they are asking me the question. लेकिन मेरा तो अगर दिमाग खराब है तो मैं कहूंगा कि नहीं, मैं उस वक्त आऊंगा जब आप मुझे देखेंगे। द पॉइंट इज, जहां तक कॉन्टेक्स्ट नहीं है वहां तक हम जिंदगी को समझ नहीं पाते। अगर कॉन्टेक्स्ट है तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग की भी जरूरत नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग इन द सेंस कि लोग कहते हैं कि थिंक पॉजिटिव। अगर आज कोरोना वायरस है, बी पॉजिटिव, श्योर, बी पॉजिटिव। लेकिन देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पॉजिटिविटी। एक पॉजिटिव वो है जिसके अंदर हमको कहने में आता है, इग्नोर द रियलिटी, रियलिटी की तरफ मत देखो, जो है उसको भूल जाओ। आधा ग्लास जो भरा हुआ है उसके तरफ देखो, आधा ग्लास खाली उसको मत देखो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पॉजिटिव, दैट इज डिसीविंग योरसेल्फ, दैट इज मैनिपुलेटिंग योरसेल्फ। वो आपको झूठ बोलने पर मजबूर करता है। मैं कहता हूं कि पॉजिटिव वो होता है कि जिसके अंदर यू डोंट इग्नोर द रियलिटी, यू लुक एट द रियलिटी एज इट इज, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट रियलिटी बीइंग देयर, you are able to deal with it because you have got the 7 spiritual principles or 7 spiritual laws in your life, और आप समझ चुके हैं कि जिंदगी को कैसे जीना चाहिए। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि so far have you been able to follow me? Just mention yes so that I know that things are getting clearer for you and you are able to understand me. अगर कोई भी सवाल होगा तो मुझे ये स्क्रीन पर आना होगा और आपसे पूछना होगा और आपके सवाल को देखना होगा। तो occasionally I'll come to this screen and then look at your questions also and try and answer it. So now let's go down all the 7 spiritual laws
और हर एक के ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा कहने की कोशिश करूंगा और उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग हम लोग फ्यूचर के सेशन में लेंगे, जहां पर हम हर एक लॉ के ऊपर एक एक सेशन करेंगे, बिकॉज अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट व्हाट दीपक चोपड़ा वुड लाइक अस टू अंडरस्टैंड। एक चीज बताते जाऊं, शायद आपके जहन में सवाल होगा कि हम क्यों दीपक चोपड़ा को सुनते हैं। हमारे पास तो हमारा इमाम है, हमारा मौला है, हमारे पास फरामीन है, हमारे पास उसकी हिदायत है। इमाम ने जिंदगी भर हमको समझाने की कोशिश की है कि आप कब सक्सेसफुल होंगे और आप कब खुशी होंगे, तो उसके बाद हमको बाहर जाने की क्या जरूरत है। तो आई एम श्योर यू पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट एंड यू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट कि हमको ये कहने में आया है कि वी मस्ट गो टू चीन, वी मस्ट गो टू चाइना इफ नॉलेज इज अवेलेबल देयर। नॉलेज, इंटेलेक्ट, विजडम इज नोबडीज मोनोपोली, हाजी इमाम सेड। तो हमको जहां पर से भी विजडम मिलता है हम उसको लेने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक चीज जरूर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सारे के सारे जो प्रिंसिपल्स है, लॉज है, हमारे फरामीन में भी है या नहीं, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। और हमको लगता है कि हाँ, ये बात इमाम भी हमको उसी तरीके से कहता है, ये कुछ अलग तरीके से कहता है, थोड़ा और ज्यादा समझा के कहता है, तो फिर हम उसको समझने की और अपनाने की कोशिश करेंगे। The first law, the first principle so if this content and context is still not very clear to you, we will come back to it later on. The first law is called the law of pure potentiality. थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, लेकिन अगर मैं बड़े आसान लफ्जों में कहने की कोशिश करूं तो मैं ये कहूंगा कि दीपक चोपड़ा इज ट्राइंग टू टेल अस कि डिस्कवर योरसेल्फ, फाइंड आउट हु यू आर। जो हमारे इस्माइली मजहब के अंदर हमको पहले दिन से कहने में आया है कि तमे ओळखो कि तमे कौन छो। एंड आई थिंक ही इज मेकिंग अ मेंशन कि अगर आप जिंदगी के अंदर सक्सेसफुल होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। ट्राई एंड फिगर आउट दैट देयर आर two identities inside you. One is called the self and the other is called the ego. अगर हम ये डिस्टिंक्शन नहीं समझेंगे तो शायद हमारी जिंदगी हम एक ही आइडेंटिटी के साथ जिएंगे जिसका नाम है हमारा ईगो, हमारा अहम। और कहता है कि हमको पता नहीं है, लेकिन 90% ऑफ द टाइम, 95% ऑफ द टाइम, 99% ऑफ द टाइम हम हमारी जिंदगी ईगो से जीते हैं। बहुत कम बार हम ये अलाउ करते हैं, ये परमिट करते हैं कि हमारा सेल्फ बाहर आए और हमारा सेल्फ चॉइस करे। हमारा ईगो सिर्फ डिसीजन ले सकता है, सेल्फ चूज करता है। तो जब कभी भी हमारा सेल्फ ऑपरेट करता है और वहां से हम अगर चॉइस करते हैं जिंदगी की, तो मानो कि हमारी चॉइस के अंदर हमें सिर्फ खुशी ही मिलती है। लेकिन जब जब भी हम सक्सेसफुल होते हैं और हमको खुशी नहीं मिलती, वी डोंट फील फुलफिल्ड, वी डोंट फील सेटिस्फाइड, we don't feel happy, let's be clear, at that time we have achieved success through our ego and not through our self. और ये डिस्टिंक्शन को हम लोग को और डीपली समझना जरूरी है। उसका ये कहना है कि अगर आप सेल्फ से ऑपरेट करेंगे तो देयर इज एबंडेंस इन योर लाइफ, देयर विल बी wealth consciousness in your life, your consciousness will be full of generosity. अगर आप सेल्फ से ऑपरेट करते हो, योर माइंडसेट विल बी वन ऑफ गिविंग, योर माइंडसेट विल बी वन ऑफ सर्विंग। लेकिन अगर आप सेल्फ से ऑपरेट नहीं करते हो और ज्यादातर ईगो से ऑपरेट करते हो, तो मानो आपकी जिंदगी के अंदर, whether you like it or not, you will consistently keep having arguments, तकरार होगी, दुख होगा, सामने वाला आपको समझेगा नहीं, आपको नहीं समझेगा तो आप कहेंगे मैं तुझे क्यों समझूं, सामने वाला आपको मारेगा तो आप कहेंगे टिट फॉर टैट, एन आई फॉर एन आई। गांधी ने कहा विल मेक एवरीबॉडी ब्लाइंड। लेकिन हमारा यही तरीका होगा जिंदगी जीने का। अगर हम ये कहते हैं ना कि ना 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 मैं तो समझता हूं, आई डोंट कम फ्रॉम माई ईगो, तो मैं कहूंगा प्लीज बी वेरी केयरफुल, ईगो इज समथिंग वेरी सटल, बहुत बारीक है ये ईगो, ये अहम, ये शिर्क,
जिसको इस्लाम के अंदर कहने में आता है कि एक ही गुनाह है जिसको खुदावंद ताला माफ नहीं करता, जिसका नाम है शिर्क, जिसके अंदर आप अल्लाह के सिवा किसी और को शरीक करो. एंड व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम योर ईगो, ऑफ कोर्स यू आर इंक्लूडिंग योरसेल्फ एज पार्ट ऑफ ईगो, पार्ट ऑफ गॉड. और आप खुदा के साथ अपने आप को कंपेयर करते हो कि जो कुछ भी पाता हूं मैं मेरी मेहनत से पाता हूं, मेरी अकल से पाता हूं, मेरे करने से होता है और मुझे किसी की जरूरत नहीं है. एट दैट टाइम यू आर कमिटिंग शिर्क. एंड ऑफ कोर्स प्रॉफिट मोहम्मद सेड शिर्क इज लाइक अ ब्लैक एंट मूविंग ऑन अ ब्लैक नाइट ऑन अ ब्लैक स्टोन. शिर्क एक ऐसी चीज है कि जैसे एक काली रात में काली पत्थर के ऊपर चल रही हो और आपको नजर ना आए, इस तरीके से ये ईगो आपके ऊपर प्रहार करेगा. इट विल अटैक यू, इट विल टेक अवे योर हैप्पीनेस, इट विल टेक अवे योर स्लीप. एंड देयरफॉर Deepak Chopra says, try and figure out how to start coming from yourself. और वो कहता है कि ये जो abundance वाली बात है ना, जो self create करता है, it's the way you look at life. आप जिंदगी को कैसे देखते हो. आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूं, जो शायद आपने सुना होगा मेरे मुंह से, that there was this particular guru, the Zen master, the Sufi master, who was sitting there in a big hall. एक बड़ा कमरा था जिसके अंदर Zen master बैठा हुआ था, and he was waiting for his murid, his disciple to enter. और symbolically ये एग्जाम्पल में कहने में आया कि पहला डिसाइपल जो था वो वेस्ट से था. He was from the west. It is of course a symbol कि जहां पर मटीरियलिज्म बहुत ज्यादा है. तो वो कहता है कि पहला मुरीद, पहला डिसाइपल जब एंटर होता है और गुरु के पास आता है तो देखता है कि पूरा रूम खाली है, पूरा कमरा, एक भी जगह नहीं है कि जहां पर कोई चीज पड़ी हो. और गुरु उसको कहता है प्लीज सिट डाउन. तो वो थोड़ा इंट्रिग्ड हो जाता है, अचरज में आ जाता है और देखता है कि कहां पर भी कोई कुर्सी नहीं है. जहां पर गुरु बैठा है वो एक ही कुर्सी है, तो वो कहां बैठे. तो गुरु कहता है प्लीज सिट डाउन. तो वो सवाल करता है गुरु को कि मास्टर वेयर कैन आई सिट, वेयर डू आई सिट, कहां पर जाके बैठूं मैं. अब उसी वक्त दूसरी जगह से, दूसरे दरवाजे से दूसरा शिष्य जो ईस्ट से आता है, जिसका सिंबलिज्म ये है कि he is of course aware of the spiritual laws. और वो जैसे आता है तो मास्टर के पास आता है तो मास्टर उसको कहता है yes my child please sit down. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो ईस्ट से आया हुआ था, जो समझता था सब कुछ, वो भी कहता है मास्टर से मास्टर वेयर डू आई सिट, मैं कहां जाके बैठूं. अब दोनों के सवाल तो एक ही थे, लेकिन वो सवाल के अंदर जमीन आसमान का फर्क था. As I told you the context, where is the question coming from? तो पहले वाला सवाल करता है कि where do I sit, क्योंकि मुझे बैठने की कोई जगह है ही नहीं, यहां पर एक ही जगह जहां पर आप बैठे हुए हो. मतलब he was coming from a deficiency mode. वो मोड जिसके अंदर हम कहते हैं कि जिसको हम कहेंगे poverty mode, poverty consciousness, deficiency. जो दूसरा शिष्य था वो भी कहता है where do I sit, and वो देखता है कि ये सारे कमरे में इतनी सारी जगह है, there is infinite place, there is sufficiency, there is so much abundance. तो बोले मैं कहां बैठूं. तो वो उसको पूछता है कि इतनी सारी जगह है मेरे पास, गुरु मैं कहां पर बैठूं. सो द क्वेश्चन इज, इस वक्त आप जिंदगी में जहां पर भी हो, मैं आपसे एक ही सवाल करूंगा कि आर यू सेटिस्फाइड, आर यू हैप्पी वेयर यू आर. अगर आप डेफिशिएंसी मोड से आएंगे तो आपके पास कितनी भी मिल्कत होंगी, कितना भी पैसा होगा, कितने भी बड़े मकान होंगे, गाड़ी होंगी, लेकिन कहते हैं ना कि सही मानों में गरीब कौन होता है पता है? जिसको हर वक्त पैसे की फिक्र होती है, जिसको हर वक्त सिक्योरिटी की फिक्र होती है, जो हर वक्त इनसिक्योर होता है रिगार्डलेस ऑफ बैंक बैलेंस, कि भाई अभी मेरा बैंक बैलेंस जो है उसको कैसे संभाल के रखूं. अगर आप वो जहन के साथ जिंदगी जी रहे हो, आपसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है. लेकिन अगर आपके पास उतना नहीं है जितना आपके पास होना चाहिए, उसके बावजूद इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस वेयर यू आर सेइंग नो, शुक्र मौला, जहां हूं सही हूं, जहां हूं वहीं होना चाहिए, because that is what you want me to be, but I will keep making effort as I go along, but without having the deficiency mode. I'll come from the sufficiency mode,
कि मेरे पास जो है उसमें से भी मैं कुछ दे सकता हूं, ये मेरा माइंडसेट है, ये मेरा सोचने का तरीका है. सो ही सेज देयर इज सेल्फ रिफरल एंड ऑब्जेक्ट रिफरल, कि या तो आप अपनी खुशी अपने सेल्फ में से लेते हो कि सब कुछ मेरे अंदर है, मैं इस कायनात का एक कतरा हूं, लेकिन आई एम द माइक्रोकॉस्म ऑफ दैट मैक्रोकॉस्म, और कायनात में जो एबंडेंस है वो मेरे अंदर भी है, और इंशाल्लाह एट द राइट टाइम ये अनफोल्ड होते ही जाएगा, और मैं और ज्यादा जनरस और एबंडेंस के अंदर जिंदगी जीते जाऊंगा. और आपका जो पावर है, पावर, he says it will be permanent because it is not dependent on the object, it is not dependent on the outside world. आपका पावर इज नॉट बेस्ड ऑन योर मनी. अगर पैसे के ऊपर पावर है और पैसा चला जाता है, आपका पावर चला जाएगा. अगर आप नाम के लिए सेवा करते हो और अगर आपका टाइटल चला गया, आप दुखी हो जाएंगे. आपका डिपेंडेंस इज ऑन द ऑब्जेक्ट रेफरल. एंड ही सेइंग ट्राई टू ऑलवेज अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट यू विल नॉट गेट हैप्पीनेस after becoming successful. In fact, only if you will be happy will you be really successful. ये कहता है कि आपको उसको इन्वर्ट करना है. I was listening to a gentleman called Sean Acker. ये नाम आपने शायद नहीं सुना होगा, और मैं आपको चाहे तो उसका डिटेल्स थोड़ा भिजवाऊंगा. But I was so impressed with this gentleman. His name is Sean Acker, SHAWNACHOR, and he has done his degree from Harvard on happiness. कैन यू बिलीव दैट? वो कहता है कि मेरे माँ बाप सर्जन है, ये है, वो है, और वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं. एंड देन व्हेन आई टोल्ड देम आई एम गोइंग टू डू अ डिग्री इन हैप्पीनेस, तो बोले तेरा दिमाग खराब हो गया है. बट आई थिंक इज वन ऑफ द फर्स्ट गाइज और द पायनियर्स जिसने ये डिग्री हैप्पीनेस में किया. और वो जो बातें करता है यूट्यूब पे, आप उसको सुनना, यू विल जस्ट बी एस्टाउंडेड, यू विल बी अमेज्ड एट द काइंड ऑफ रिसर्च ही हैज डन. And he says very small changes in your life will lead to huge transformations. Little choices. बहुत अच्छी बात करता है. वो कहता है तुम दिन के अंदर सिर्फ 3 बातें लिखो for which you are grateful, कि आप कौन सी चीज के लिए ग्रेटफुल हो जिंदगी में. रोज सुबह को उठ के अपने जर्नल के अंदर 3 बातें लिखो कि आज सामने वाले ने मेरे साथ स्माइल किया तो आई वॉज हैप्पी. आज मैंने इतना कमाया, आई एम हैप्पी. आज मैं मेरे बच्चों के साथ 2 घंटे गुजारा, आई एम हैप्पी. 3 अच्छी बातें लिखो फॉर विच यू आर ग्रेटफुल एंड यू आर थैंकिंग गॉड. ही इज सेइंग डू दिस फॉर 21 days, और तुम्हारी जिंदगी के अंदर तुम्हारा जो एटीट्यूड है, वेयर डू आई सिट, डेफिशिएंसी मोड से वेयर डू आई सिट, सफिशिएंसी मोड में आ जाएगा. और वो कमाल का रिसर्च किया है. एंड आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू मस्ट ऑल्सो लिसन टू हिम ऑन द यूट्यूब. He is gone on the Fed Talk also, and then some other national conferences also. He says that when you begin to live from yourself, so you will start tuning yourself with the universe. अपनी जिंदगी इस तरीके से जियो कि जिस तरीके से लॉ ऑफ नेचर है कि सूरज उगता है, चंद्रमा डूबता है, पेड़ बनते हैं, फूल खिलता है, ये सारी चीजें जो हो रही है एफर्टलेसली, अगर आप सेल्फ में से जिंदगी जीना शुरू करेंगे, आपकी जिंदगी भी एफर्टलेस होना शुरू हो जाएंगी. बट द पॉइंट इज यू हैव टू ट्यून इन विद द यूनिवर्स. और उसके लिए वो 3-4 स्टेप्स हमको देता है जिस पर आप गौर करना. और ऑफ कोर्स पहले वाला तो हम सब जानते ही है. ही सेज टेक सम टाइम आउट फॉर प्रैक्टिसिंग साइलेंस. हो सके तो दिन में एक 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा किसी से बात मत करो, साइलेंस में रहो, अपने आप के अंदर जाने की कोशिश करो. कीप रिफ्लेक्टिंग ऑन हाउ द डे हैज गॉन, हाउ द लाइफ हैज मूव्ड फॉर मी. Practice silence. And then of course the second word for that silence, or the second step, is also do meditation, maybe for half an hour in the morning, half an hour in the evening, maybe even for 5 minutes to begin with, but always meditate. He is so much emphatic about meditation. He's saying that when you meditate, that is the only route to get into the field of possibilities. आपको चाहिए ना आपकी जिंदगी के अंदर खुशहाली आवे, आपको चाहिए ना आपकी जिंदगी के अंदर सारे ऑप्शंस आते जावे, आपको चाहिए ना कि मैं जो जकड़ा हुआ हूं, बंधा हुआ हूं, मुझे
कुछ नजर नहीं आता कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, मुझे समझ में नहीं आता कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ही इज सेइंग द ओनली वे टू डू दैट इज टू एक्सेस योरसेल्फ, एंड टू एक्सेस योरसेल्फ यू हैव टू मेडिटेट. व्हेन यू मेडिटेट, ऑफ कोर्स हम जब बंदगी करने बैठते हैं तो हमको विचार आते हैं, ख्याल आते हैं, लेकिन वो कहता है कि वो तो आएंगे, उससे लड़ने की कोशिश मत करना, उसको एक्सेप्ट करना कि आ रहे हैं और आवे ऐसा उसको जाने देना. इस पर हम थोड़ा डिटेल में फ्यूचर में बात करेंगे, हाउ टू मेडिटेट. लेकिन वो कहता है कि मेडिटेशन में अगर आपका ध्यान लग जाता है तो आप देखेंगे कि एक थॉट और सेकंड थॉट के बीच में एक गैप होता है. देयर इज अ गैप बिटवीन द फर्स्ट थॉट एंड द सेकंड थॉट. और अगर आपकी प्रैक्टिस होगी ऑफ कंसंट्रेशन तो आप ये दो थॉट के बीच का जो गैप है उसमें दाखिल होंगे. और अगर आप उसमें दाखिल हो गए तो माशाल्लाह आप उसके बाद जो भी सोचेंगे, जो भी करेंगे, वो गैप में से इंशाल्लाह आपकी जिंदगी के अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा. ह्यूज शिफ्ट्स विल टेक प्लेस इन योर लाइफ इफ यू विल बिगिन टू लर्न एंड प्रैक्टिस हाउ टू गेट इनटू द गैप इन बिटवीन द टू थॉट्स. एंड ये जो पॉसिबिलिटी वाली बात है ना, मेरे प्रोग्राम में मैं ये करता हूं, जो आपको सिर्फ जिक्र करता हूं यहां पर, कि जिंदगी में हम हमारी पूरी जिंदगी जो जीते हैं वो राइट रॉन्ग में से जीते हैं, क्या सही है और क्या गलत है. या हम जिंदगी में वही बात सुनते हैं कि जिसके लिए हम अग्रीमेंट में होते हैं और वो नहीं सुनते हैं जो डिसएग्रीमेंट में होते हैं. तो मुझे अगर मेरी औरत कहती है कि तेरे को इस तरीके से खाना नहीं खाना चाहिए, या इस तरीके से नहीं घर पे आना चाहिए, या इस तरीके से ये काम नहीं करना चाहिए, इफ आई एम इन डिसएग्रीमेंट, या तो मैं नहीं सुनता हूं, या तो मैं उसको कहता हूं चुप हो जा, मैं 45 साल से ये काम करते आया हूं, ऐसा ही कर रहा हूं और ऐसा ही करूंगा. लेकिन अगर वो कुछ अच्छी बात करती है, ओ अमीन तू तो बड़ा अच्छा इंसान है, तू तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जिंदगी जिया, कुछ भी हो जाए, कितने भी बुरे काम किया, कितने भी गलत काम किया, लेकिन फाइनली तूने फैमिली को संभाला, तो मैं सुनना शुरू करता हूं. तो हम या तो अग्रीमेंट में सुनते हैं और डिसएग्रीमेंट में नहीं सुनते, राइट में होते तो सुनते, रॉन्ग में होते तो नहीं सुनते. और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सके तो ये जो गैप वाली बात है ना, टू लिव विद इन द टू थॉट्स, मैं आपको कहूंगा जब आप गैप में जाएंगे तो यू विल नॉट लिसन टू राइट एंड रॉन्ग एंड अग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट, यू विल लिसन आउट ऑफ पॉसिबिलिटी. हर चीज के अंदर आपको पॉसिबिलिटी ढूंढने की आपको ताकत मिलेंगी. यू विल हैव द पावर टू आस्क फॉर द पॉसिबिलिटी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लुक फॉर द ट्रूथ. I don't know what the truth is. मुझे पता नहीं किसी को भी ट्रूथ मिलेगा. अगर कोई कहता है कि मुझे पता चल गया कि सही ट्रूथ क्या है, तो मैं कहता हूं वो खुदा हो गया, और हम खुदा नहीं है. इमाम said, we are not perfect human beings. तो अगर हम परफेक्शन नहीं ला सकते हैं और ट्रूथ को नहीं जान सकते, तो the only second best thing we can do is look out for possibilities. और हमारे जहन, हमारी जिंदगी में कुछ अच्छी बात बने, उसमें भी पॉसिबिलिटी होंगी. कोई अच्छी बात नहीं बनती है, कोरोना वायरस है, उसमें भी पॉसिबिलिटी है. सवाल यह है कि वो जो सवाल था ना कि शिष्य मास्टर से पूछता है, मास्टर विल आई डाई इफ आई फॉल इनटू द वाटर. ज़ेन मास्टर, डिसाइपल, विल आई डाई इफ आई फॉल इनटू द वाटर. दरिया किनारे बैठे थे. मास्टर कहता है, नो माय सन, यू विल नॉट डाई इफ यू फॉल इनटू द वाटर, यू विल डाई इफ यू विल नॉट कम आउट ऑफ द वाटर. ज़ेन मास्टर था ना, तू अंदर पानी में जाएगा तो नहीं डूबेगा, पानी में से बाहर नहीं आ सकेगा तो डूबेगा. नाउ दैट इज व्हाट दिस सेशन इज ऑल अबाउट, कि वी विल प्रिपेयर आवरसेल्व्स, वी विल लर्न हाउ टू कम आउट ऑफ द वाटर. देखो, गिरेंगे तो सभी, और गिरना जरूरी है, नहीं तो आप दूसरे किनारे नहीं पहुंचेंगे. लेकिन आधे लोग गिरते हैं और डूब जाते हैं, या फिर सारी जिंदगी डर में जीते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं उतना ही पैर फैलाऊंगा जितनी मेरी चद्दर है. और कुछ लोग कहते हैं नहीं, आई विल फॉल, लेकिन मुझे पता है कैसे बाहर आना, और कैसे बाहर आना ये बात हम ये सेशन के जरिए आज नहीं लेकिन आने वाले दिनों में भी समझने की कोशिश करेंगे. सेकेंड थिंग ही सेज इज प्रैक्टिस नॉन जजमेंट. जो मैंने अभी कहा ना कि राइट रॉन्ग, अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट, दैट इज जजमेंट. Is it possible to live out of non-judgment? क्योंकि आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि सामने क्या हो रहा है अगर आप जजमेंट में से आते हो. सामने वाला शख्स क्या कह रहा है, किस तरीके से आपके साथ डील करता है, जिंदगी आपको क्या कहना चाहती है. अगर आप जजमेंट में से नहीं आएंगे, जो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है. अगर मैं नेक्स्ट कदम मेरा रखता हूं तो मुझे जजमेंट लेना पड़ता है कि नेक्स्ट कदम, नेक्स्ट स्टेप में पानी है या जमीन है. एंड आई चूज, आई डिसाइड, I judge
कि नहीं ये जमीन है, पानी नहीं है, तो हमको जजमेंट तो करना ही पड़ता है। लेकिन वो जजमेंट अलग है, और ये जो जजमेंट है, वेर वी बिगिन टू कम टू अ कंक्लूजन कि लोग ऐसे ही है, जिंदगी ऐसी है, मैं ऐसा ही हूं, मैं इतना ही कर सकता हूं, मैं उससे ज्यादा नहीं कर सकता हूं, मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं, मेरी उम्र हो गई है, अब मैं नहीं जी सकता हूं। He's saying when you come from judgments, you will stop your life, you will get stuck. प्रैक्टिस नॉन जजमेंट, ये बहुत डिफिकल्ट चीज है, और ये तो मैं आपको थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़े एक्सरसाइजेस देके भी आपको और होमवर्क देकर आपको कह सकता हूं कि स्टार्ट प्रैक्टिसिंग नॉन जजमेंट। इसके अंदर आपकी पॉसिबिलिटीज है, इसके अंदर आपकी जिंदगी समाई हुई, इसमें आपका खजाना समाया हुआ है। और ऑफ कोर्स फिर वो कहता है स्पेंड टाइम विथ नेचर, ये बहुत बड़ी चीज है। इफ यू वांट टू ट्यून इन विद द यूनिवर्स, स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद द नेचर ऑल्सो। और नेचर के साथ आप फिजिकली जब रहेंगे तो आपका माइंड और आपका स्पिरिट विल बिगिन टू ट्यून इन विद द यूनिवर्सल नेचर, और शायद आपको उस वक्त भी आसानी होगी टू मेडिटेट, टू बी इन साइलेंस, टू बी नॉन जजमेंटल। एक आखिरी चीज वो मेंशन नहीं करता है, लेकिन मेरा इंटरप्रिटेशन है कि आप जिंदगी में तब सेल्फ के अंदर जा सकेंगे when you will first begin to ask yourself and ask yourself whether you are authentic or not. ये बहुत डिफिकल्ट वर्ड है, ऑथेंटिक। और अगर जब तक आप ये देख नहीं सकते हो that you are also inauthentic, वहां तक you are cheating yourself, you are lying to yourself. So पहले तो ये जानना जरूरी है, where am I inauthentic in my life? Where do I behave and live inauthentically? देखो, ज्यादातर हम उस तरीके से जिंदगी जीते हैं जहां पर हमको चाहिए कि लोग हमारा अप्रूवल करें, जहां हमारी वाह वाह करे, जहां हमारी तारीफ करे। तो अगर हम जिंदगी इस तरीके से जीते हैं कि जहां लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, वहां से अगर आप जिंदगी जीते हो, तो मैं कहता हूं यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई, हाँ मैं वहां से जीता हूं, दैट इज माई इनऑथेंटिसिटी। मैं वहां पर वो चूज नहीं करता हूं जो मुझे करना चाहिए, मैं वो करता हूं जो मेरी माँ कहती है, मेरा बाप कहता है, मेरे दोस्त कहते हैं, मेरी सोसाइटी कहती है। तो अगर आप ऑल द टाइम यू आर कंसर्न्ड अबाउट व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू, यू आर इनऑथेंटिक। और वो इनऑथेंटिसिटी के साथ आप जिएंगे तो यू विल ऑलवेज ट्राई टू बी पॉपुलर, यू विल ऑलवेज गो फॉर अप्रूवल, यू विल ऑलवेज गो फॉर, ओ मेरी कोई तारीफ करे तो मैं सेवा करूंगा। और अगर किसी ने कह दिया कि ए तू तो अपने आप के लिए कर रहा है, तू तो दिखावे के लिए कर रहा है, तो वी स्टार्ट गेटिंग ऑफेंडेड, और हम कहते हैं कि ये दुनिया में कोई जस्ट देता नहीं है, कोई कभी भी अच्छा रिवॉर्ड मिलता नहीं है। वी कैन टॉक अबाउट दिस some other time. Pure potentiality is our intrinsic nature. It leads us to accessing the affluence and abundance of the universe. ये बात प्योर पोटेंशियलिटी, फील्ड ऑफ पॉसिबिलिटी, वो क्वांटम फिजिक्स की बात करता है किताब के अंदर, कहता है कि वी आर नथिंग बट द एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन। पेड़ में और हमारे में सिर्फ इतना फर्क है कि उसमें भी कार्बन है, उसमें भी ऑक्सीजन है, उसमें भी हाइड्रोजन है, हमारी बॉडी में भी कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द ट्री एंड अस ह्यूमन बीइंग्स इज दैट वी हैव गॉट एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन। बहुत पावरफुल बात करता है, और क्वांटम फिजिक्स की बात करता है कि जहां पर अब ये पता चलने लगा है कि वो लेवल के पार्टिकल्स है जो लेवल के पार्टिकल्स हम आज तक देख नहीं पाए हैं, हम सिर्फ उसके बारे में सोच सके। द बेस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट सी दोज पार्टिकल्स विच आर फार फार स्मॉलर देन द एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स दैट वी नो ऑफ। और कहता है कि वी कैन ओनली थिंक अबाउट दोज पार्टिकल्स, लेकिन वहां पर भी वो कहता है कि when you try and pay your attention to that particle, it comes into existence and then it goes away, comes into existence and goes away when you pay the attention. एक बड़ी पावरफुल बात की है क्वांटम फिजिक्स की, वो भी आप पढ़ना, आप समझने की कोशिश करेंगे। But the point he's making is that you can only create something out of nothing. You cannot create anything out of already something created. He says that when you are thinking, you are thoughts, you are not thinking. आप अपनी जिंदगी पास से जी रहे हो, आप उस लेवल से नहीं जीते हो कि जहां पर आप ब्लैंक हो, स्पेस है, एंड एनीथिंग बिकम्स पॉसिबल, वहां से आप जिंदगी नहीं जीते हो। सेकेंड लॉ के ऊपर आ जाऊं क्विकली। तो कल है ना वो टूल नीचे कर लेके आने वाला है। So some people are asking me the question about his book called Happiness Advantage. Yes, you have found that out correctly. And some are saying that what is his YouTube channel? I think if you say Sean Aker, you will immediately get him. And
somebody saying the gap between two thoughts, ask yourself whether you are authentic or not. We are energy and information. Great. So I hope things are okay with everybody here, and so far so good. I am supposed to try and do some more of those laws as much as possible in the next few minutes that I will have, and I'll open for question answer. So in case I don't cover all 7 of them, at least 1, 2, or 3 I'll cover well, and then leave the rest for the future session. Is that okay with everybody? Great. Okay. So let's continue. लॉ ऑफ गिविंग, ये शायद आपके लिए बहुत इजी है समझना। सिर्फ एक ही बात बताते जाऊं आपको मैं, कि ये गिविंग वाली बात है ना, जबकि हम समझते हैं उसको अमल करना बहुत डिफिकल्ट है। मैं सिंपल एक ही बात आपको कहूं कि अगर आप आज वहां पर नहीं हो जहां पर होना चाहिए, आपको जितना चाहिए अगर वो आपके पास नहीं है, और कोई आकर आपसे कहता है कि नहीं उसको भी आप शेयर करो, तो आई नो एंड यू नो इट इज सो वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू डू दैट। सिंपल बात कहूं आपको, थोड़ा मैं अपने मजहब पे चले जाता हूं, लेकिन इज इट नॉट वेरी डिफिकल्ट टू गिव द शोंद? ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए इस वक्त, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि सिंपल बात है कि कुछ बातें ऐसी होती है कि जो इफ वी आर फ्रॉम द डेफिशिएंसी मोड, हम डरे हुए हैं, हमको लगता है जो है कितना कम है, उसको दे देंगे तो क्या होगा। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि while it is very difficult and it is not easy even for me, start practicing giving as much as you can. Give on a day-to-day basis. Give to everybody around you, whether it be a smile or whether it be a little bit of a money or little bit of a help or your सेवा। मैं आपको कहूंगा, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मैं अगर जिंदगी में कुछ हुआ हूं, कुछ बना हूं, तो एक ही चीज के बारे में जो बार बार मैं अपनी वाइफ के साथ डिस्कस करता हूं कि अगर हमको जिंदगी में ऊपर वाले ने बचाया है या कुछ दिया है, तो उसका एक ही रीजन है कि हमने एक चीज ऑलवेज की है जिंदगी में, सेवा की है। और वो सेवा भले ईगो से भी की हो कभी कभार, और कभी सेल्फ में से की हो, अच्छे लगने के लिए किए हो या अंदर से खुशी मिलती है उसलिए किए हो, लेकिन ये सेवा, गिविंग is the very very powerful principle of life। और इस पर आप गौर करना, और अगर आज तक आपने अमल किया भी है तो उसको और कैसा अमल करेंगे उसके ऊपर सोचना। आपको क्विकली 1-2 एग्जांपल दे दूं ताकि आपको ये बात थोड़ी अच्छी तरीके से समझ में आए। एक बहुत बड़ा ज्ञानी था, बड़ा भक्त था, और सारी जिंदगी उसने बड़े अच्छे काम किया था, तो बहुत पहुंचा हुआ हस्ती था। वो जब मरने वाला होता है तो एक दूसरे संत को बुलाता है और उसको कहता है कि देख, मैं तो अभी शायद गुजर रहा हूं और कल मैं नहीं रहूंगा, लेकिन तू मेरे से भी आगे पहुंचा हुआ है, तो मुझे चाहिए कि प्लीज तू मुझे बता कि मेरे बच्चों की जिंदगी के अंदर उनकी तकदीर में क्या है। उसको फिक्र थी अपने लड़के और लड़की की कि मैं चले जाऊंगा उसके बाद उनका क्या होगा, क्योंकि मैंने इतना नहीं रखा हूं उनके लिए जितना होना चाहिए। तो वो जो संत था जिसकी उसने बहुत सेवा किया था, गुरु मानता था, वो उसके तकदीर में देखता है, नसीब में देखता है, तो उसको पता चलता है कि उसके नसीब में कुछ खास नहीं है, उसके बच्चों की तकदीर में वो चीज नहीं है जो होना चाहिए। तो वो कहता है कि रहने दो, फिर कभी आपको बताऊंगा। तो वो कहता है नहीं नहीं, तुझे आज ही कहना होगा क्योंकि मेरी जिंदगी अभी बहुत लिमिटेड है। तो जब वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है और एम्फसाइज करता है कि नहीं, भले कितना भी कड़वा सच हो, मैं सुनना चाहता हूं ताकि मैं सुकून से मर सकूं, तो वो कहता है अगर तुझे सुनना ही है तो सुन ले। मैंने देखा, बहुत ध्यान से देखा, तो मुझे पता चला कि तेरे बेटे और बेटी के तकदीर में सिर्फ इतना ही है। तो बोले कितना है? तो बोले उनकी तकदीर के अंदर एक गाय है और एक गुनी गांव की है। There is one bag of wheat and one cow। ये दो ही चीज उनके नसीब में है। मुझे पता नहीं क्यों मुझे ये नजर आया। तो बोले इससे ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा उनको? तो बोले नहीं मिलेगा, शायद ये उनकी तकदीर है।
थोड़ी देर के लिए तो वो भी डिसअपॉइंट हो जाता है, लेकिन अब जब वो रियल मरने की अनी पर आता है तो अपने बच्चों को बुलाता है, दोनों को, बेटे और बेटी को, और उनको कहता है मैं चले जाऊं उसके बाद एक चीज याद रखना, जिंदगी के अंदर एक बात प्लीज याद रखना, और वो ये है कि अगर आप मुझे प्यार करते हो तो हर रोज सुबह को आप उठेंगे तो पहले दान करना। तो बोले किस चीज का दान करेंगे? तो बोले एक गुनी गेहूं और एक गाय का दान करना। तो बोले ये तो आसान बात है, हम लोग करेंगे। तो बोले लेकिन कभी भी भूलना मत, रोज एक गेहूं और एक गाय आपको दान करना होगा। कहते हैं कि वो बाप गुजर जाता है और उसके बाद ये बेटे और बेटी के पास कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक गुनी गेहूं और एक गाय बच जाती है। और उनको कहने में आया था कि उसको दान कर देना, तो वो रोज उसको दान कर दे, फिक्र किए बिना कि अब हमारा क्या होगा। लेकिन क्योंकि उनके नसीब में गेहूं और गाय लिखी हुई थी, दूसरे दिन फिर से आ जाती है। रोज दान करे, रोज आ जाए। द पॉइंट बीइंग सेड इन दैट स्टोरी इज कि अगर आपके नसीब में है, आपके तकदीर में है, तो प्लीज डू नॉट वरी अबाउट what is right now with you. Don't worry about the future. Don't get pessimist because of the past. Just follow the laws of nature. और वो बच्चे सारी जिंदगी दान किए, उसके बावजूद वो कभी गरीब नहीं हुए। आपको मैंने हेवन और हेल का भी एग्जांपल दिया हूं कभी वायस के अंदर, कि वो जब जाता है, रात को नींद में सपना आता है, वो देखता है कि वो ऊपर जाता है तो उसको फरिश्ता है वो बोलता है कि चलो आपका हम जजमेंट करेंगे। तो बोले मुझे बताओ तो सही कि क्या है हेवन और हेल। तो बोले चलो मैं आपको टूर पर ले जाता हूँ। तो वो पहले जाता है हेल में, दोजक में, और वहां जाकर देखता है कि सारे लोग बैठे हुए हैं और सारे लोग के सामने इतना सारा खाना है, लेकिन सारे लोग तकलीफ में है, हार्ट पिंजर है, हड्डी नहीं है, फसली नहीं है, वो लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड है। और वो सोचता है कि सारे के सारे लोग, खाना सामने पड़ा हुआ है, क्यों खाते नहीं है और क्यों रो रहे हैं? तो देखता है कि उनके हाथ जो थे उसमें एक लकड़ी की पट्टी लगी हुई थी, और वो पट्टी की वजह से वो हाथ ऊपर लेके खा नहीं सकते थे। तो कितना भी अच्छा पकवान था वो लेके खा नहीं सकते थे। और बोले ओ माय गुडनेस, ये दोजक है सही मानों में, कि आपके सामने अच्छे से अच्छा खाना हो और आपको खाने ना मिले क्योंकि आपका हाथ बैंड नहीं होता है। वो सेकंड बोलता है अब हम जन्नत में जाके देखेंगे। तो जन्नत में जाके देखता तो सारे सारे खुशखुशाल अच्छी तरीके से खा रहे पी रहे। बारीकाई से देखता है तो पता चलता है उनके भी हाथ में लकड़ी लगी हुई है। तो वो सोचता है अरे बाप रे, इनके भी हाथ में लकड़ी, तो वो कैसे खाते? तो थोड़ा ध्यान से देखता है तो देखता है कि वो खुद लोग नहीं खाते, वो सामने वाले को खिलाते। ये इसको खिलाता है, सामने वाला उसको खिलाता है, और वो लोग बड़ी आसानी के साथ जिंदगी जीते हैं और खुशी के साथ जी रहे हैं। तो ये जो फर्क है ना दोजख और जन्नत का, कहते हैं ना कि इलनेस becomes wellness if you add we to I. Illness becomes wellness if you add we to I. तो अगर हम गिविंग के मोड से आते हैं तो अल्बर्ट स्विट्जर का मैंने यहां पर कोट लिखा है। वो कहता है कि यू कैन काउंट द नंबर ऑफ सीड्स इन एन एप्पल, बट कैन यू काउंट द नंबर ऑफ एप्पल्स इन अ सीड? कि आप एप्पल के अंदर कितने बीज है वो तो आप गिन सकते हो, लेकिन आप जिंदगी में मर जाएंगे तो नहीं समझ सकेंगे कि एक बीज के अंदर कितने एप्पल है। A seed will have the entire forest, provided we come from the seed and not from the apple, provided we come from the self and not from the ego, provided we seek to give rather than only take. और मैंने एक यहाँ पर लफ्ज लिखा है जिस पर कभी फ्यूचर में बात करेंगे, कि ये दुनिया में जैसे कि रूहानियत की दुनिया में इमाम सेज देयर इज नो गिव एंड टेक। मैं तो कहता हूं ये दुनिया के अंदर भी देयर इज नथिंग कॉल्ड गिव एंड टेक। गिव एंड टेक इज इन बिजनेस। सही मानों में जिंदगी जीना है, कम फ्रॉम द डिस्टिंक्शन कॉल्ड गिव एंड गेट। आप देंगे और आपको मिलेगा, आप मांगेंगे नहीं, और आप तब नहीं देंगे कि जब मिलने वाला है, आप दे देंगे क्योंकि आपको देने में खुशी है, और इंशाल्लाह आपको उसमें से भर भर के मिलेगा। तो जो कुछ भी आप किसी और के लिए करते हो उससे बहुत ज्यादा आपको मिलेगा। तीसरा लॉ था ऑफ कर्मा, कॉज एंड इफेक्ट, और कहता है कि यू आर द चॉइस मेकर। स्वामी विवेकानंद सेज कर्मा इज एन असर्शन ऑफ फ्रीडम,
अब फ्रीडम कहाँ आया? कर्मा के लिए तो कहने में आता है कि अगर मैंने पाप किया है तो मैं भुगतूंगा, मैंने अच्छे काम किया है तो मुझे अच्छे फल मिलेंगे, ये कर्मा है। तो फ्रीडम कहाँ आया? और यहां पर आपको समझना जरूरी है, जो दीपक चोपड़ा समझाने की कोशिश करता है कि प्लीज अंडरस्टैंड यू हैव द फ्रीडम इवन इन कर्मा। उसके लिए 3 स्टेप देता है, लेकिन वो फ्रीडम के साथ साथ वो एक चीज बताने की कोशिश करता है कि जब कभी भी आप ईगो से जीते हो तो आप समझते हो कि somebody else is to be blamed for your misery, somebody else is responsible for your life, somebody else, some circumstance is doing something to you। ये बात बहुत कम लोग समझते हैं, और मैं कहता हूं उसको समझना बहुत डिफिकल्ट है कि nobody is offending you, nobody is insulting you। अगर आपको मैंने कह दिया ए तू क्या समझता है तो आपको बुरा लग जाता है, लेकिन उसने तो सिर्फ क्या कहा, तू क्या समझता है। उसका मतलब ये नहीं हुआ कि तू खराब है, उसका मतलब ये नहीं कि तू पागल है, इसका मतलब ये नहीं कि तू अहंकारी है, इसका मतलब ये कि तू अपने आप को क्या समझता है। We do not see things as they are, we see from the lens of our own interpretation। और जब हम हमारे इंटरप्रिटेशन से देखते हैं तो क्योंकि हम ऑलरेडी ऑफेंडेड है, ऑलरेडी तकलीफ में है, अगर उसने सेंटेंस कह दिया कि तू अपने आप को क्या समझता है, हम उसका माना निकालते हैं कि वो मुझे ये कह रहा है कि मैं सेवा करने नहीं मांगता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। The point is, try and distinguish your interpretation and the fact। Try and distinguish what are you bringing, what is the baggage you are bringing to this content। अगर मैंने कहूं ना I insult you, उसी वक्त मैं आपको इंसल्ट करता हूं। उसके अलावा अगर मैं ये वर्ड यूज नहीं करता हूं, I am insulting you and you are getting insulted and offended because you are already hurt। डिटेल में समझने वाली बात है। लेकिन हुआ क्या है कि क्योंकि हम ये इंटरप्रिटेशन को और हकीकत को, व्हाट हैपेंस एंड हाउ वी रिस्पॉन्ड टू व्हाट हैपेंस, ये अगर फर्क हम समझते नहीं है तो अभी हम रिएक्टिव जिंदगी जीते हैं। अगर एक चीज आपको आखिर में मैं 1-2 बातें बताते जाऊं तो मैं ये कहूंगा कि आज के बाद हो सके तो जिंदगी में नेवर रिएक्ट, ऑलवेज रिस्पॉन्ड। बहुत बड़ा फासला है। विक्टर फ्रैंकल की बात करूंगा जो ये समझाने की कोशिश करता है दैट द इफेक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन कॉज, इफेक्ट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ इन बिटवीन द कॉज एंड द इफेक्ट। ये बहुत बड़ी बात है जो विक्टर फ्रैंकल समझाने की कोशिश किया, जो फ्रॉइड के अगेंस्ट गया और कहा कि नो, ये कर्मा की थ्योरी को हम लोग बदल सकते हैं, भले हम कैसी भी जिंदगी जिए हो, हमारा इफेक्ट हम बदल सकते हैं। उसके लिए दीपक चोपड़ा भी 2-3 बातें बताता है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताते जाऊं आगे कि रिएक्शन के अंदर होता क्या है कि हम एक ही तरीके से जिंदगी जीते, एक ही तरीके से बिजनेस करते, एक तरीके से सेवा करते, एक तरीके से बॉस को देखते, एक तरीके से माँ को देखते, बाप को देखते, औरत को देखते, बच्चे को देखते। जो हमारा तरीका है ना वो अभी सेट हो गया है बिकॉज वी आर रिएक्टिंग। बट द मोमेंट यू प्रैक्टिस रिस्पॉन्डिंग you will be able to break out of this prison। ये क्या बोलता है prison? How we do anything is how we do everything। We are the creatures and prisoners of our past habits। तो हम ये हैबिट को कैसे तोड़ना और नई जिंदगी फ्यूचर में से कैसे क्रिएट करना, ये हमको समझना जरूरी है। वो 3 चीजें बताता है कर्मा के लिए कि अगर उसमें से बाहर आना है और ट्रांसफॉर्मेशन लेना है तो तीसरा तरीका है ट्रांसेंड द कर्मा थ्रू एक्सपीरियंसिंग द गैप थ्रू मेडिटेशन। हम फ्यूचर में बात करेंगे। आखिर में एक चीज बताते जाओ जो मैं बहुत बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूं और बहुत ज्यादा मुझे खुशी मिली ये समझने के बाद कि जिंदगी में अगर आपको सही मानों के अंदर एबंडेंस चाहिए तो यू हैव टू कम फ्रॉम द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हमको ये कहने में आता है कि डू लेस गेट मोर। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये होवे कैसा है, मुमकिन कैसा है? तो उसके अंदर वो 3 प्रिंसिपल की बात करता है कि जैसी भी जिंदगी पहले एक्सेप्ट करो विदाउट इंटरप्रिटेशन। Look at life as it is, then you will have the power to deal with the current situation। If you are going to live with life and deal with life based on your thoughts, then you will come out with the solutions which are also based on the past। You have to come out with a possibility to deal with the new situation that is coronavirus right now। So right now we don't have to worry about the virus, we have to worry about our mind which is getting contaminated with the virus। जो होना है सो होगा, लेकिन अगर आज हम उस फिक्र के अंदर नेगेटिव होते जाते हैं, 3 ग्रेटिट्यूड लिखने को भूल जाते हैं और शुक्रिया अदा करना भूल जाते ऊपर वाले का, और ये विजडम में नहीं आते
बहुत पावरफुल बात दीपक ने कही, विजडम ऑफ अनसर्टनिटी। जिंदगी के अंदर एक कानून है, बी विद द विजडम ऑफ अनसर्टनिटी। जिंदगी में सर्टनिटी आपको कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन आपके पास अगर विजडम होगा हाउ टू लिव विद अनसर्टनिटी, माशाल्लाह, एवरी अनसर्टन मोमेंट यू विल क्रिएट अ पॉसिबिलिटी। तो वो एक्सेप्टेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ability to respond, or defenselessness, not to impose your point of view on others. Be happy with the way people are, the way they think about you. Be happy with it. And without reacting, figure out the response and then come out of love. And inshallah, over a period of time, the same person who's dealing with you this way will deal very differently. ये तो बड़ी आसान चीज है अगर हम प्रैक्टिस करना तो। लेकिन इससे भी अच्छी बात, I was going through this and I loved it. A night before the day of Matsya Ved, piercing fish eye competition, Krishna and Arjuna are conversing. देखो, ये entire session is ours, is, I would say, it's a life altering conversation. Deepak Chopra is showing us the way which is life altering. और यहाँ पर हमने ये story सुनी है कि Arjuna is supposed to pierce the eye of the fish. वो फिश की आंख के अंदर उसको तीर चलाना था और तब जाकर उसको मिल सकती थी जिससे वो शादी करे। और सारे लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन अर्जुन वाज द मोस्ट पावरफुल, मोस्ट स्किलफुल इन पियर्सिंग द आई। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये था कि यू आर नॉट सपोज टू लुक एट द फिश डायरेक्टली, यू हैव टू लुक एट द वाटर, एंड फ्रॉम द इमेज, फ्रॉम द रिफ्लेक्शन इन द वाटर, यू आर सपोज टू pierce the eye of the fish, and that was very difficult task. तो कृष्णा उसको कोचिंग दे रहा था, he was the mentor, और कृष्णा उसको समझाता है कि अर्जुन टेक केयर, पुट योर स्टेप फॉरवर्ड, कॉन्सेंट्रेट ऑन द आई ऑफ द फिश। ऐसे बहुत सारे 100-150 इंस्ट्रक्शंस देता है और उसको समझाने की कोशिश करता है कि डिसिप्लिन क्या चीज है, डिटर्मिनेशन क्या चीज है, इंटेंशन क्या चीज है, अटेंशन क्या चीज है, कॉन्सेंट्रेशन क्या चीज है, प्रैक्टिसिंग स्टॉपिंग योर चैटर ऑफ योर माइंड क्या चीज है, do away with that little voice that keeps talking to you all the time and come from yourself. बहुत सारी बातें सिखाता है। अब अर्जुन जो था ना, ऑलरेडी बहुत पावरफुल था, उसको मालूम था उससे अच्छा और कोई नहीं है दुनिया के अंदर। और जब उसमें भी कहते हैं ना, द ब्लैक एंड मूविंग ऑन अ ब्लैक स्टोन इन अ ब्लैक नाइट, उसमें भी अहम तो आ ही गया, एरोगेंस तो आ ही गया। तो वो कृष्णा को कहता है कि कृष्णा, इफ आई हैव टू डू एवरीथिंग देन व्हाट विल यू डू। अब उसको ताना मारता है कि तूने बहुत सिखाया मेरे को, लेकिन अभी बस कर, बहुत एडवाइस सुना मैं तेरी, और सारे काम अगर तू चाहता है कि मैं ही करूं तो तू क्या करेगा। तो पहले तो उसको सवाल करना नहीं चाहिए। सेकेंडली, ही वाज कंसिडरिंग कि हम दोनों पार्टनर है, तो मैं ये करूंगा तू ये करेगा, तो उसको लगता है कि सब मेरे को दे दिया और कृष्ण ने खुद के लिए तो कुछ नहीं रखा। तो कृष्ण को सवाल करता है कि अगर मैं सब कुछ करूंगा तो तू क्या करेगा। तो कृष्ण इन ए वेरी सॉफ्ट टोन टेल्स हिम, व्हाट यू कांट डू आई विल डू। तो अर्जुन को कहता है कि जो तू नहीं कर सकता है वो मैं करूंगा। अब अर्जुन कहता है कि सारे के सारे काम तो तूने मुझे दे दिया है, तो अब बाकी क्या रहा, कुछ नहीं रहा। तो व्हाट इज इट दैट आई कांट डू, मेरे को एक चीज तो बता जो मैं नहीं कर सकता हूं, तूने जो कहा सब मैं कर सकता हूं। तो कृष्ण बहुत बहुत आसानी से कहता है, आई विल कीप द वाटर स्टेडी। क्या कहता है कि जो पानी के अंदर तू देख कर, झांक कर उस फिश की आई के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने वाला है, वो पानी को स्टेडी मैं रखूंगा। जो दरिया ओशन है, ओशन इट इज फुल ऑफ वेव्स, उसको स्टेडी करना नामुमकिन है तेरे लिए, वो सिर्फ मैं कर सकता हूं क्योंकि मैं कृष्ण हूं। और अगर वो पानी को अगर मैंने हिला दिया तो तेरी सारी स्किल, तेरी सारी काबिलियत नाकाम हो जाएंगी। द यूनिवर्स इज योर इनविजिबल पार्टनर। और हमको ये समझ के चलना है कि जब तक हम सेल्फ, और जब तक हम यूनिवर्स, और जब तक हम ऊपर वाले को साथ में लेकर नहीं जिएंगे, हमारा काम बहुत डिफिकल्ट होते जाएगा। टुडे इफ वी आर स्ट्रगलिंग बिकॉज वी थिंक आई हैव टू डू दिस एंड आई हैव टू अचीव दिस एंड ओनली आई एम डूइंग इट, नोबडी एल्स इज डूइंग इट। दीपक चोपड़ा सेज, रिमेंबर दैट लाइफ हैज लॉज, वी मस्ट यूज थिंग्स एंड लव पीपल। What we end up doing is we love things and we use people. This is the opposite of this principle. और जब आप वो प्रिंसिपल से जिंदगी जिएंगे, आपकी जिंदगी में कितना भी कुछ आ जाएगा, खुशी नहीं आएंगी, फुलफिलमेंट नहीं आएगा, सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। उसके बाद वो इंटेंशन और डिजायर की बात करता है,
हम नेक्स्ट टाइम उस पर ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ इंटेंशन होवे और हमारा अटेंशन होवे जो हमारा इंटेंशन है, तो माशाल्लाह वो चीज आपकी जिंदगी में आएगी आएगी और आएगी। मैं बार बार ये एग्जांपल देता हूं, मुझे बहुत प्यारा है एग्जांपल, कि आप इंटेंट तो करते हो लेकिन आप सही मानों में वो इंटेंशन नहीं होता आपका। वो शख्स प्यासा था, ट्रेन के अंदर सफर कर रहा था, बहुत टाइम तक स्टेशन नहीं आता है, स्टेशन आता है तो जल्द से बाहर निकलता है कि थोड़ा पानी पी लूं, बाहर देखता है तो दुकाल है और पानी आ नहीं रहा है नल के अंदर, देखता है दूर एक छोटा लड़का पानी बेच रहा है और वो जैसे देखता है वो पानी बेच रहा है उसको बोलता है कि जल्दी आ मेरे को एक गिलास पानी दे। तो उसकी जो ट्रे थी उसमें 8-10 गिलास पानी के थे, वो पानी लेने की कोशिश करता है, लेकिन लेने के पहले उसको लगता है कि मैं प्यासा हूं, ये जानता है मैं प्यासा हूं और मेरी गरज है, तो वो शायद बहुत ज्यादा पैसे मांगेगा। तो कहता है कितना पानी का? तो बोले 10 रुपया। तो गुस्से हो जाता है, इतने से पानी का 10 रुपया, इम्पॉसिबल। तो वो कहता है कि 10 रुपया बहुत ज्यादा है। तो बच्चा क्या कहता है पता है? कहता है साहब छोड़ दो, मुझे ये पानी आपको नहीं बेचना। तो बोले क्यों नहीं बेचना? तो बोले बस आपको मुझे नहीं बेचना। तो बोले पर क्यों नहीं? तो बोले नहीं, मैं ये पानी उसको देना चाहता हूँ कि जो सही मानों में प्यासा है। तुम मेरे पानी की कीमत लगा रहे हो, इसका मतलब तुम प्यासे नहीं हो। अगर तुम प्यासे होते तो पहले पानी पीते फिर उसका दाम पूछते, तुम पहले दाम पूछते हो फिर पानी पीते हो, इसका मतलब आप प्यासे नहीं हो। ये जो इंटेंशन वाली बात है ना, इट हैज टू कम फ्रॉम योर गट, फ्रॉम योर गट हियर। अगर जो भी चीजें आपके गट में से निकली है ना, आप अपनी जिंदगी में झांक कर देखना, आपको मिली है। आपको मिली है बिकॉज आप उसके लिए बहुत तड़पे थे। मिली है क्योंकि आपके अंदर से, आपके दिल से ये बात निकली थी कि मुझे ये बनना है, ये पाना है, ताकि मैं ये कर सकूं और मैं ये मेरी फैमिली के लिए, मेरी कम्युनिटी के लिए, मेरी जमात के लिए, मेरे देश के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए कर सकूं। जब कभी भी आपका इंटेंशन वहां से आता है ना, विच इज अ बिगर इंटेंशन, इंशाल्लाह वो इंटेंशन आपका ऑलवेज ऑलवेज कबूल होगा। उसके लिए भी वो स्टेप्स देता है, लॉ ऑफ डिटैचमेंट एंड लॉ ऑफ धर्मा पर्पस, जो लास्ट दो है। और मैं सिर्फ आपको यही कहूंगा, ये 3 प्रिंसिपल को याद रखो, इंटेग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी। ये 3 चीज आपकी जिंदगी में है, माशाल्लाह आप कभी दुखी नहीं होंगे और आप देखेंगे तरक्की आपके कदम चूमेंगी। ये प्रिंसिपल्स अगर मैं समराइज करूं तो यही है कि यू आर होल एंड कंप्लीट एंड परफेक्ट एंड जॉयस, देयर आर स्टॉप्स एंड बैरियर्स दैट डू नॉट अलाउ यू टू एक्सपीरियंस इट, change causes persistence, whatever you resist will persist, and no change causes disappearance. Very powerful, हम कभी उस पर बात करेंगे। ये मैं 3 कोटेशन दिया हूं जहां पर कहने में आया कि we are, when a Buddhist asks what is the opposite of enlightened, it is not yet enlightened. हम सब कोई रेडी है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, हम we are just not yet enlightened, we are not unenlightened. और डेविड जो था, माइकल एंजेलो, कहता है ओनली चिप्ड ऑफ द अननेसेसरी पार्ट ऑफ डेविड। दिस इज अ ब्यूटीफुल सेइंग कि वो पत्थर था, जो एक पत्थर था उसको खुरच खुरच के डेविड एक ब्यूटीफुल उसने स्कल्पचर निकाला। कहता है ओनली चिप्ड ऑफ द अननेसेसरी पार्ट ऑफ डेविड। एंड ऑफ कोर्स रूमी सेज इफ एवरीथिंग अराउंड यू सीम्स डार्क, लुक अराउंड यू मे बी द लाइट। शायद आपके अंदर वो लाइट है और आप सारी दुनिया को रोशनी दे सकते हो। लाइफ विल पे एनी प्राइस यू आस्क ऑफ इट, डोंट अप्रोच द ओशन विद अ टीस्पून। Thank you all for taking the time and effort to discover yourself. In this challenging time, we will remain grounded in the wisdom of uncertainty and come out on the other side more matured and fulfilled. आप लोगों ने आपका वक्त दिया. I am really grateful for giving me this opportunity. मुझे तो एक और मौका दे दिए where I can begin to get my own insights, my own transformation while I am talking to you. मुझे मेरी बात समझ में आती ज़्यादा और ज़्यादा जब मैं आपसे बात करता हूँ. So please keep remembering me. Keep giving me this opportunity, and I would love to, in case if it has been helpful to you, love to come back to you over and over again. So Mukesh Sahib, Nurali, I would like to now open up for question answer if there is time. If not, maybe we can do it some other time, but I think I've already exceeded my time limit. Yeah, thank you very much, sir. It was a wonderful session, and all of us are going today with lots of knowledge and wisdom. So now we open for the question and answer session. So whoever wants to ask the question, there is a raise hand option at the bottom of your screen. So you have to press that raise hand option so I can unmute you from here. So everyone can hear me? Okay. Anwar Mukesh wants to answer, so I will unmute you.
Anurmukhi sir, you can ask. Yalimada Chairman, Maulali Madad. how are you, sir? I am good. I'm always good when I'm with you all. Sir, silence. Yes. How to practice that? It's very difficult to be silent, even if you say for 5 minutes or 10 minutes. Very I true. really mean it. Yeah. So how Very to go true. about? I mean, slowly, how to get it? Since Yes. we know we sit in a bandagi and all that, but still this is a component which is always missing in everybody's life, baby. Yes. 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 Would you put some light on this? Okay. So let me mention or explain something which I did not earlier. मुखी साहब is asking, मुखी साहब ये कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ये silence बड़ी difficult चीज है, and I'm giving my version of what his question. I don't know whether he means it or not, पर सवाल ये है कि what is silence? Silence is just keeping quiet. Yes, at one level it is just keeping quiet. At one level it is being with yourself alone in a room where nobody is there, nobody is disturbing you, and you are not speaking out loudly. ये एक level है silence का. But the real question that Mukhi Sahib is asking is, can you have the silence of your mind? Because whether we like it or not, there is a little voice, which I call voice over, which is constantly talking to you. And it is not allowing you to be silent. और वो जो दीपक चोपड़ा गैप की बात करता है ना, between the first thought and the second thought, there is a gap and you have to enter that gap. That requires practice. और वो practice के अंदर it is important कि first of all we recognize that we have that little voice. Number one, we recognize that that is not me. I am not that. I am different from the voice which is talking in my head. The chatter is going on 24 hours and it is not allowing me to be silent such that the real thought should come, the new thought can come, the future can come. तो हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारा ये जो इस वक्त अगर मैं आपको पूछूं, can you see that somebody is talking to you inside you? Just try and listen to yourself. Yeah. So it is talking to you saying, Yes. yeah, I mean, क्या समझाने की कोशिश करता है, या I mean always ज्यादा टाइम लेता है, या अभी थोड़ा बोरिंग हो रहा है, या नहीं बड़ी खुशी मिल रही है, I'm enjoying it. Whatever is your state of affair right now, it is communicating to you. Whether we like it or not, it is talking to us. First, we have to identify that that is not myself, that is my mind, that is my ego, that is my chatter, that is my little voice. Secondly, we have to recognize that we are all the time listening to him and following him most of the time. तो अगर मैं देखता हूँ मुखी साहब के पास, मुखी साहब के सामने, और जैसा मुखी साहब मेरे सामने आते तो मैं कहता हूँ अभी ये कुछ बोलेंगे मेरे को. The moment I am saying that, it is a chatter which is inside me, and now it completely changes the way I will now be with Mukhi Sahib. और अगर मेरा chatter कहता है कि नहीं मुखी साहब आए, वाह, now he is my savior, वो मुझे बचाएंगे, my entire response to him will be different. Now, I am not saying that one is good, one is bad. All I'm saying is recognize there is a voice that is controlling you. Now, a quick example आपको दे दूं मैं. Supposing आप गाड़ी में जा रहे हो, and of course this is from the book Untethered Soul, जो आपके साथ पहले कभी बात किया था मैंने. वो ऑथर कहता है, जिसका of course whole idea is to surrender experiment किया उसकी जिंदगी में उसने, और उसने surrender किया to the universe, and he lived his life out of surrender. Unbelievable guy. He's still alive in Florida. He surrendered himself to such an extent कि वो कभी भी कोशिश नहीं किया कोई बिजनेस करने की, और सीईओ बन गया. उसकी जरूरत थी $300 की, वो मिलियनर बन गया. और उसके बाद ऑफ कोर्स किसी ने इल्जाम डाला तो बर्बाद हो गया, लेकिन इन एवरी इंस्टेंस, एवरी मोमेंट ही सरेंडर्ड एंड ही वाज हैप्पी, व्हिचएवर बी द मोमेंट. तो वो कहता है कि जब आप गाड़ी में जा रहे हो एंड यू आर अ टीनेजर, और
आप बड़े खुश हो, सब कुछ सही है, आप गाड़ी में जाते हो तो आप देखते हो कि बिल्डिंग है, आप पेड़ को देखते हो, आप लोगों को चलते हुए देखते हो। अभी कोरोना में आपको लोग नहीं दिखेंगे, लेकिन आपको बिल्डिंग दिखेंगी, पेड़ दिखेंगे, सब कुछ दिखेगा, तो आप सब कुछ देखते हो। फिर जब आप घर पे आते हो तो आपको याद रहता है कि आपने कौन सी बिल्डिंग देखी, या वो बिल्डिंग का कलर क्या था, या कौन सी रेस्टोरेंट थी, नहीं याद रहता है। आप सबको देखते हो और देख के दे कम एंड दे गो, दे कम एंड दे गो, नथिंग स्टिक्स। लेकिन मानो आप गाड़ी से जा रहे हो और उस वक्त एक फर्स्ट क्लास फरारी निकलती है आपके सामने से, ब्लू कलर की फरारी, और आप थोड़ा ध्यान से देखते हो तो देखते हो कि फरारी के अंदर आपकी गर्लफ्रेंड है। ओ माय गुडनेस। लेकिन उसके बाद आप क्या देखते हो कि आपकी गर्लफ्रेंड इज सिटिंग वेरी क्लोज टू द ड्राइवर, बहुत करीब बैठी हुई है। ओ माय My गुडनेस, God. ओ माय गुडनेस। अब आपका दिमाग खत्म हो गया, आप बोले माय ये क्या मैंने देखा। अब आपको घर पे आने के बाद एक ही चेहरा नजर आएगा कि आपकी गर्लफ्रेंड बैठी थी, बहुत करीब बैठी थी उस ड्राइवर के। कैन यू फॉरगेट हिम? कैन यू फॉरगेट हर? नो। कैन यू फॉरगेट फरारी? नो। Why does it impact you? Because right now you are in the attachment mode, not in the detachment mode. और वो झाड़, वो पेड़, वो बिल्डिंग, वो रेस्टोरेंट आपको नहीं याद रहती है, लेकिन अभी जब कभी भी ब्लू फरारी निकलेंगे आपका दिमाग फिर जाएगा। Yes or no? Any Ferrari that you will see, you will hate Ferrari. कोई कहेगा आपकी एम्बेसडर गाड़ी की जगह पे फरारी देता हूं, नहीं मांगती है, मेरी एम्बेसडर अच्छी है। Now he gets married, she is married. उसके बाद आपको 10 साल के बाद भी अगर फरारी के अंदर वो दिखेंगी ना, तो आपको फिर से वो बात याद आ जाएंगी और आपको अंदर से तकलीफ शुरू हो जाएंगी। The point I'm trying to make here is कि to concentrate in silence, to concentrate in meditation, it is important to know how to deal with our past thoughts which have got registered out of our attachment to life. और जब तक हम ये प्रैक्टिस नहीं करते as to how to get into the gap, चांसेस आर हम सही मानों में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, और ये जो साइलेंस वाली बात है वो बार बार आते रहेंगी। तो मैंने जो प्रिंसिपल बताया ना कि वॉट एवर यू विल रेजिस्ट विल परसिस्ट, एक चीज याद रखना, आज के बाद आपको जो चीज पसंद नहीं है ना, उसको अगर आप रोकने की कोशिश करेंगे वो और आपकी जिंदगी में आएगा। सो दिस जेंटलमैन सेज, if those thoughts are coming, let them come and let them go. Let it go, let it go. Practice letting go. And chances are in your practice of letting go, not only while you are sitting in silence, but even day-to-day life के अंदर, start living a life with let go, detachment. हाँ, मुझे चाहिए, अगर सही मानों में मेरा है तो मुझे मिलेगा। वो बहुत बचपन में मैं अपने आप को ये saying देता था, if you want something very very badly, let it go free. If it comes back to you, it is yours forever, and if it doesn't, it was never yours to begin with. मैं अपने आप के बड़े डायलॉग्स बोलता था बचपन में। कहने की बात यह है कि अगर कोई चीज आपको चाहिए तो यू हैव टू आस्क एंड इंटेंड एंड पे योर अटेंशन आउट ऑफ नॉन डिटैचमेंट। और ये प्रैक्टिस आप करेंगे ना, थॉट्स को आने देंगे और जाने देंगे, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं आपके पास, बिकॉज यू आर अ ह्यूमन बीइंग, वी आर ह्यूमन बीइंग, एंड वी कैन नॉट ऑटोमेटिकली एंटर इनटू साइलेंस। वी विल हैव टू लेट इट कम एंड गो, लेट इट कम एंड गो, and practice such that we don't get offended and we don't get pleased by how people and circumstances deal with us. ये अगर आप practice करेंगे, इंशाल्लाह आपके silence के mode के अंदर आपको आसानी होगी, and over a period of time we will be able to be in true silence. But start practicing by at least being alone, reflecting, let it come and let it go. And inshallah, this is something that I cannot teach, and this is not something that you can understand. This is something you can only get it. Remember the word get it. You will get it. It will occur to you. You cannot have a formula of how to get into silence. I don't know, Mukhtar, if I'm answering your question. Yes. You already answered my question. Thank you. Thank you so much. Welcome. Nurali, anybody else? Yes, we take one more question, one or two Okay. questions. So anyone Okay. wants to ask the question, please raise your hand. By the way, people are making points here, and they are also giving the name of the book and the author, Michael Singer. I'm so pleased. I'm so happy that all of you are doing that, and people are also thanking me. Thank you so much for being here. आप अगर thank you कहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, but I will practice over here also non-detachment.
And we are also asking one question, sir. When is the next session? Mukhi Sahib will decide, and Mukhi Sahib Okay. will tell you. And I think Mukhi Sahib said we are experimenting it. We said we will do it for 30 minutes, 45 minutes. I think we have crossed 1 hour. Question answer ke bagair. But I think Mukhi Sahib, over a period of time, will let you know, maybe earlier than later, Okay. कि हम कभी डिटेल के अंदर ये बातें और आगे बढ़ाएंगे. Will we take the same book or will we take another book? I don't know. You will have to give response to Mukhi Sahib and Nur Ali and Parvez and others who are involved in the committee. और आप जैसा चाहेंगे वैसा हम लोग ये सेशन करेंगे. और बेस्ट बात यह है कि अब ये करना आसान है. मेरे वक्त की जरूरत है और आपके वक्त की जरूरत है. बाकी न तो हॉल लेना है, न तो पैसा खर्चना है, न तो आपको फीस चार्ज करनी है. हाँ, एक चीज है, एक मुझे बड़ा दुख है इसके अंदर, कि क्योंकि मुखी साहब आपको फीस नहीं चार्ज करेंगे ना, आपको उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए. एनीथिंग गिवन फ्री नेवर वर्क्स. आई नो आपने कुछ दिया है, पता है क्या दिया है, आपका टाइम दिया है, तो मुझे पता है इट विल वर्क फॉर यू. बट इन फ्यूचर also I will hope that people who give their time, they are giving something and they will receive as much one is supposed to receive. But the more you give, the more you receive is the principle. तो कभी कभार कोई आपसे मांग लेना कि 1 लाख रुपया दो ये वेबिनार पे आने के लिए, तो प्लीज देना. हाँ, क्योंकि आपको सामने मिलियन मिलेगा उसके बाद. You have to come from that particular possibility. अगर आप कंज्यूमर माइंडेड रहेंगे तो आप सोचेंगे अरे बाप रे मैं 10 रुपया कैसे दूं. लेकिन अगर आपको प्यास लगी ना, तो आप ये नहीं पूछेंगे 10 रुपया, आप कहेंगे वेबिनार दो, आप चाहे उतना पैसा देंगे आपको. And then you pay only 10 rupees. But I'm just making a point here that don't give advice free of charge in your life also, to your children, to your wife. I am not giving my advice free of charge. My wife gives me a lot of free advice. But the second idea is, when people give you free advice, please listen to it. Please listen to it. Otherwise you're coming from arrogance. So don't give, but always listen to free advice. ये बड़ा नुस्खा आपको मैंने दिया है आपकी जिंदगी के बड़े-बड़े इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए. Yes. Yes. We take one more question and then we conclude the session. Okay. So anyone wants to ask the question, please raise your hand so I can unmute.